हेलो फ्रेंड्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी सॉ द अप्रोच टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है, क्या स्टेप्स होता है व्हेन यू स्टडी एनी क्लासिकल सिस्टम। द फर्स्ट स्टेप वाज टू define the physical state of system. The second step was to determine the physical state at t equal to 0, मतलब determine the initial physical state of the system. And third step was to see how to determine how the physical state of the system is going to evolve with time when it is subjected to external influence, right? So whenever you study dynamics of the system, मतलब whenever you try to determine how the physical state is evolving with time, right? In that case, there are some set of laws which will help you. मतलब डायनेमिक्स जानने में आपको ये जो सेट ऑफ लॉज हैं विच यू कॉल न्यूटन्स लॉज, राइट, दे आर नॉट न्यूटन्स लॉज, बेसिकली दे आर द लॉज ऑफ नेचर, दे आर द लॉज ऑफ नेचर। मतलब ऐसा नहीं कि न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नो दिस, नो, मतलब ये तो बहुत शुरू से ही लोग जानते थे। न्यूटन रोट इट इन ए ब्लैक एंड वाइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, राइट, एंड ही ट्राई टू गिव इट ए बुक फॉर्म, राइट, पेपर का फॉर्म दे दिया, ही रोट द थिंग्स। मतलब ये तो ऐसे लॉज हैं जो कि हम लोग मनुष्य शुरू से ही जानता होगा। मतलब when I write those laws, you will understand it. They are not very something which is very unique or something which Newton got for the first time. मतलब ये पहले से भी लोग जान रहे होंगे, उसको एक फॉर्मेट नहीं दिया होगा, न्यूटन gave it a format, right? So we will see Newton laws of motion. We call it Newton laws just to pay respect to the great Newton, right? Okay, fine. So let's try to discuss the Newton laws one by one. Yeah, let's try to discuss them one by one. Let me check the mic. Yeah. So the first law, let me write the first law, Newton's first law. The first law, Newton's first law, let me write Newton's first law. It says every physical or natural system has a tendency, every physical system has got a natural tendency, that right, every physical system, natural system, physical system, same thing, the system made by nature, natural system, so has tendency to uphold its existing physical state. Every physical system has a tendency to uphold its existing physical state. ये तो पॉजिटिव लैंग्वेज में हो गया। नेगेटिव लैंग्वेज इसको ऐसे बोलेंगे, और has a tendency to oppose, सेम चीज है, to oppose any change in its physical state, right? Every physical system has a tendency to uphold its existing physical state or has a tendency to oppose any change in its physical state. This tendency is called inertia, and due to this inertial tendency, due to this
inertial tendency, the physical state of system does not change unless it is subjected to an external influence. समझ रहे? ये कंप्लीट स्टेटमेंट है विच आई एम राइटिंग. बुक में शायद अलग तरीके से बताएंगे. बुक में एक्चुअली देखो, न्यूटन्स लॉज वी स्टडी एट डिफरेंट लेवल. 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ता है बच्चा, 10+2 में भी आता है तो पढ़ता है, ग्रेजुएशन में भी लॉज पढ़ता है, मास्टर्स में ही पढ़ेगा, पीएचडी वाला भी जानता ही होगा, नहीं जानता हो तो पढ़ेगा. ठीक है, तो मतलब सेम लॉज अलग अलग लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन उस लॉज का जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफर करेगा. मतलब 7वीं 8वीं में बच्चा उसको रट लेगा, 11वीं 12वीं में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा, उसको अप्लाई भी करेगा, ग्रेजुएशन पे थोड़ा उसको और समझने की कोशिश करेगा. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन पे मेरे हिसाब से उसको फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी समझना चाहिए, और पीएचडी वाले को तो खैर समझना ही चाहिए बिकॉज वो डॉक्टर इन फिलोसफी है. ठीक है, एनीवे जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हम बताते हैं, आप समझ जाएंगे. ठीक है, 10+2 के हों तब भी ये समझ जाएंगे. ठीक है, सो देखो हम क्या लिखे हैं. हम लिखे हैं एवरी फिजिकल स्टेट, physical or natural system has got a tendency to uphold its existing physical state or has a tendency to oppose any change in physical state. ये हम लोग अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं. हम लोग भी नेचुरल सिस्टम है, हम लोग के अंदर भी ये टेंडेंसी पाया जाता है. इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं. जैसे मान लो हम लोग सोए हुए हैं, 6 बजे 7 बजे सोए हुए हैं, अब कोई हम लोग को उठाता है, पहला रिएक्शन क्या होता है? हम लोग नहीं उठना चाहते हैं. आप किसी को भी देखो, 6 बजे सुबह उठा दो तो वो कहेगा अरे यार रुको यार 5 मिनट और सोएंगे. मतलब हम लोग एक, हमारा फिजिकल स्टेट क्या है? वी आर स्लीपिंग, राइट, एंड वी हैव ए टेंडेंसी टू अपहोल्ड इट. थोड़ा और सोएंगे. ठीक है, थोड़ा और सोएंगे. हमेशा घंटी लगा के सोते हैं, फिर लगता है यार रुको यार था 5 मिनट घंटी, वो स्नूज का ऑप्शन आता है मोबाइल में आजकल, फिर बंद करते हैं, 5 मिनट फिर बजता है, फिर बंद करते हैं. ऐसे कई बार बहुत देर तक सो जाते हैं. तो ये हम लोग का टेंडेंसी है, इनर्शियल टेंडेंसी. कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, ये नेचुरल है. हर आदमी के अंदर, हर सिस्टम के अंदर इस तरह का टेंडेंसी पाया जाता है. ये टेंडेंसी कहाँ या क्यों भगवान ने दिया, ये एक रिसर्च का टॉपिक है. इनफैक्ट अभी तक ये समझ में भी नहीं आया किसी को, बट ये पाया जाता है. वी हैव इनर्शियल टेंडेंसी. अगर मान लो आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो एकदम से मान लो टीचर टेस्ट अनाउंस कर दिया कि भाई तुम्हारा मंडे को टेस्ट है. आपका पहला जो रिएक्शन होगा नो का होगा. नो, क्यों है टेस्ट? एकदम से कोई टेस्ट अनाउंस कर देगा तो पहला जो अंदर में इच्छा जागेगा, कहेगी यार नो. ठीक है, नो वाला वर्ड आएगा. यू वोंट वेलकम इट. अरे बहुत अच्छा है यार, ले लो यार टेस्ट, ऐसा वाला नहीं आएगा. कोई बहुत एक्सट्रीमली पढ़ाकू लोग होगा, पढ़ के पोंगा बन गया होगा तो अलग मैटर है, बट आम जो नेचुरल लोग हैं वो लोग नो ही बताएंगे. तो हम लोग हमेशा ही यथा स्थिति मेंटेन करने का टेंडेंसी रखते हैं. जैसे हम लोग भी अब तो जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं. ठीक है, 20 साल मैंने क्लासरूम टीचिंग भी किया, एंड आई वाज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल टीचर इन क्लासरूम मोड. तो बड़ाई नहीं कर रहे अपना. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम भी क्लास लेने जाते थे ना, 9 बज गया, बच्चा लोग पहुंच जाता था क्लास में, हम घर पे ही होते थे, तो मन करता था यार कहाँ जा रहे हैं यार, कितना बढ़िया सोए हुए थे, बैठे हुए थे,
फिर क्लास है, फिर वो मतलब एक इनर्सिया आ जाता कि नहीं यार क्यों क्लास में जा रहा है। फिर एक बार पढ़ाने लगे, फिर फ्लो बन गया, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाते रहेंगे, फिर वो फिर फिजिकल स्टेट पढ़ाने वाला हो गया, फिर बच्चा लोग कहेगा नहीं अब छोड़ दिए, नहीं पढ़ लो यार थोड़ा और पढ़ लो, ऐसा वाला टेंडेंसी आता है। तो जिस फिजिकल स्टेट में उसको अपहोल्ड करने का एक टेंडेंसी हमेशा ही होता है। आप भी मान लो कहीं तैयारी करने जाते हो, आजकल देखते हैं बच्चे घर छोड़ के, बिहार छोड़ के उधर कोटा चले जाते हैं। हालांकि क्या पढ़ाता है हमको तो नहीं समझ में आता है, इन लोग फिजिक्स पढ़ाता भी है या रटवाता है नहीं पता, खैर बुराई नहीं करना किसी का। तो वो देखते हैं कि जाएंगे तो एक ही बार मतलब तैयारी करके ही लौटते हैं फिर, ठीक है, तैयारी पूरा करके ही लौटेंगे, क्योंकि एक बार फ्लो बन जाता है तो फिर बार बार आना जाना करेंगे तो फ्लो टूट जाता है, वो टेंडेंसी हो जाता है कि नहीं तैयारी करें तैयारी ही करो, ठीक है, एक बार IIT वाईआईटी क्वालिफाई करके ही जाएंगे। तो ये इनर्सिया है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ठीक है। तो मतलब ये इनर्सिया होता है, किसी भी चेंज को अपोज करने का हम लोग टेंडेंसी रहता है, कोई भी चेंज को अपोज करने का हम लोग टेंडेंसी रखते हैं। और ये इनर्सिया टेंडेंसी जो है वो समय के अनुसार मतलब बच्चों में कम होता है, बड़ों में ज़्यादा होता है, बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा होता है, खैर वो नेक्स्ट सेकेंड ला में देखेंगे हम लोग। तो एवरी सिस्टम हैज़ गॉट ए इनर्शियल टेंडेंसी ऑफ opposing any change in physical state, and because of this tendency the person stays in the same physical state। हम लोग सेम फिजिकल स्टेट में रहते हैं अनलेस कि बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं एग्जर्ट हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एग्जर्ट ना हो तब तक वो फिजिकल स्टेट सेम मेंटेन करते हैं हम लोग। इनर्शियल टेंडेंसी होता है, ठीक है, टेंडेंसी होता है अपहोल्ड करने का, तो जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग सेम फिजिकल स्टेट में बने रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली डिफाइंस इनर्सिया, ये इनर्सिया को इट डिफाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर्सिया इन अ नेचुरल सिस्टम। अब इसी को अगर मान लो हम प्योर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हम लोग इसको मॉडिफाई कर दें, तो लिखेंगे एवरी पार्टिकल, every object, every particle remains in equilibrium if it is at rest, ऐसे बोलो, if it is at rest it will continue to be in rest, and if it is in motion then it will continue to be in motion। if it is moving with constant velocity it will keep on moving with the constant velocity unless it is acted upon by a external force। So every particle which is either at rest or in constant velocity, moving with constant velocity, will continue to move with the constant velocity or continue to be in rest unless it is acted upon by a external force। Or you can say if a particle is in equilibrium, if a particle is in equilibrium, then it will continue to remain in equilibrium unless it is acted upon by a external force। तो इसी को हम लोग उसके फॉर्म में लिख दिया, बट एक जर्नलिस्टिक व्यूज यही है, जर्नलिस्टिक व्यू यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। अब आप बताइए मुझे कि ये क्या स्पेशल है, व्हाट न्यूटन फाउंड, ये तो सब लोग जानता था पहले से ही, ये तो पहले से ही, ऐसा तो था नहीं कि न्यूटन के पहले मतलब लोग बहुत फट से जग जाता था, ठीक है, या एग्ज़ाम को वेलकम करता था, ऐसा नहीं था, बस शुरू से ही है, ये जब से ये दुनिया बना है तब से ये देखा गया, इस तरह का टेंडेंसी सिस्टम में देखा गया। अगर ये पेन ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगा कई वर्षों तक, ठीक है, हमेशा, जब तक कि आप इस पर कोई फोर्स ना लगाए, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे ये रेस्ट में ही रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है, जानते हैं हम लोग, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है हम लोग का। वही रियल लाइफ एक्सपीरियंस को हम लोगों ने वर्ड्स के फॉर्म में यहाँ लिख दिया है और उसको हम लोग बोल दिया लॉ है, बिकॉज हम लोग पाए हैं कि ये चीज़ हमेशा होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक लॉ का फॉर्मेट दे दिया हमने, ठीक है, ओके। सो इज इट क्लियर? फर्स्ट लॉ इज वेरी क्लियर, राइट? इट टेल्स यू व्हाट इनर्शिया, राइट? इट टेल्स यू व्हाट इनर्शिया, फाइन। एंड द मेजर ऑफ दिस इनर्शिया इज मास बेसिकली, राइट? अब इनर्शिया भी बड़े तरह के हैं, ट्रांसलेशनल इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इनर्शिया को मास बोलेंगे, रोटेशनल इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। द मेजर ऑफ दिस
ऑफ कोर्स मैकेनिक्स में मास है, बाकी ऐसे तो नहीं है, मतलब इन जनरल तो मास नहीं बोलेंगे, मतलब पार्टिकल के लिए मास बोल देंगे। मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल इनर्शिया इज मास। ठीक है, लिख दें क्या? लिख लेना, वही है। ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, इट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम unless it is acted upon by a external force, right? And the measure of this inertia is mass. If it is translational state, the tendency of upholding translational state is called translational inertia, and the measure of translational inertia is mass, right? If it is in rotational state, it will continue to be in rotational state, right? And this inertia of rotational, maintaining its rotational state is called moment of inertia, right? तो आगे पढ़ेंगे लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव वे टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि बॉडी या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, सिस्टम विल रिमेन इन द सेम फिजिकल स्टेट अनलेस इट इज एक्सर्टेड अपॉन बाय ए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? ठीक है, न्यूटन लॉ बोल रहा है कि जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट नहीं होगा तब तक सिस्टम सेम फिजिकल स्टेट में रिमेन कंटिन्यू करेगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट ऑन द सिस्टम, इस फिजिकल स्टेट इज गोइंग टू चेंज। अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्ट करेगा सिस्टम के ऊपर तो उसका फिजिकल स्टेट बदलेगा। ठीक है, सो सेकेंड लॉ इज न्यूटन सेकेंड लॉ। If or the physical state of the system changes if physical state of the system changes if it is acted upon or it is acted upon by and it is subjected, right? If it is subjected to an external इन्फ्लुएंस। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्ट नहीं करेगा तब तक फिजिकल स्टेट सेम रहेगा, कंटिन्यू वही रहेगा। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। मतलब सिस्टम का फिजिकल स्टेट बदलेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्ट कर रहा है तो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ से ही था, उल्टा लिख दिया हमने ऐसे। बट सेकेंड लॉ सिर्फ यहीं तक बात नहीं करता। सेकेंड लॉ टॉक्स अबाउट क्वांटिफिकेशन ऑल्सो। सेकेंड लॉ ये तो क्वालिटेटिव लाइन हो गया ना कि फिजिकल स्टेट इज गोइंग टू चेंज इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। सेकेंड लॉ टॉक्स मोर अबाउट इट। सेकेंड लॉ टॉक्स अबाउट कि the rate of, second law talks about rate of change also, कि rate of change of the physical state, the amount by which the physical state is going to change with time. It also talks about the quantification, rate of change of physical state of the system. सिस्टम के फिजिकल स्टेट में कितना चेंज आएगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। देखिए, सिस्टम के फिजिकल स्टेट में कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, जैसे हम लोग छोटे थे तो सुबह सोए हुए हैं, मतलब हम लोग का ज़माने में था कि
सुबह सुबह उठ के पढ़ना होता था। एक रूल होता था कि अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे 4:30 बजे गार्जियन उठाते थे और पढ़ना होता था। ठीक है, ये गांव में हम लोग का एक था ही फैशन, रूल था। हालांकि सुबह उठने से हम पाए हैं कि बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा नहीं होता था, झुकते ही थे। ठीक है, नींद पूरा होना चाहिए बच्चों का, तो लेकिन चलो था। तो जैसे अब सुबह सोए हुए हैं तो पहले सिस्टर उठाई, मान लो दिन में सोए, सिस्टर भी सोई रहती थी, दिन में मान लो सोए हुए, दिन में कोई उठाने आ रहा है या सोए हुए कभी भी सोए हुए, तो कोई बच्चा आके उठाया, सिस्टर उठाई, छोटी बहन डांट के भगा दिया, अरे सोना हमको। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो था स्ट्रांग नहीं है। भाई सिस्टर इज माई यंगर सिस्टर, आई कैन डांट सकते हैं उसको। ठीक है, माता जी उठाई, हाँ हाँ उठते हैं उठते हैं उठते हैं, अभी उठते हैं, ऐसे बोल दिया। ठीक है, मतलब अभी उठते हैं अभी उठते हैं। वैसे बाबूजी आवाज़ लगाए, फट से उठ गया, बहुत डर है। तो देखिए सोए हुए हैं, फिजिकल स्टेट है, सोए हुए हैं। अब कितना जल्दी चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन आदमी हमको उठा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है। अब मान लो एक ही टॉपिक होता है, जैसे आप देखिए स्कूल में या कॉलेज में, मान लो मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स पढ़ाने वाले बड़े सारे लोग हैं। ठीक है, अब किसी का देखिए ज़्यादा समझ में आता है, किसी का कम समझ में आता है। ठीक है, किसी का बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है। तो आपका जो नॉलेज का लेवल है, जो नॉलेज का स्टेट है, मैकेनिक्स का नॉलेज स्टेट है, वो कितना चेंज आएगा, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन पढ़ा रहा है। नहीं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कितना एग्जर्ट हुआ है। किसी टीचर का बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा पढ़ाता है तो बहुत अच्छा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है, आपका नॉलेज बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, आपका जो नॉलेज है वो तेज़ी से बढ़ता है, इंटेलेक्ट तेज़ी से बढ़ता है। तो डिपेंड करता है कौन पढ़ा रहा है। एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग समझ में आता है, अलग अलग लेवल तक समझ में आता है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? सिस्टम तो वही है, फ़र्क क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग है उस पर फ़र्क पड़ता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग एग्जर्ट हो रहा है उस पर फ़र्क पड़ता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। समझ रहे? एक ही क्लास में आप बच्चे बैठे हैं तो अलग अलग टीचर सेम टॉपिक पढ़ाता है, बच्चों को अलग अलग लेवल तक समझ में आता है। तो कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? सिस्टम में फ़र्क नहीं है, स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ़र्क है। स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ़र्क है। कोई स्ट्रांग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है, बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। कोई कम इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है, कम चेंज आ रहा है। ठीक है, अब टीचर का इन्फ्लुएंस तो टीचिंग से ही होगा ना। आजकल तो देखते हैं कि मतलब पता नहीं, हम लोग पुराने ज़माने के टीचर हैं, आजकल तो बड़ा टीचर कॉमेडियन टाइप का आ गया है मार्केट में। मतलब हम लोग तो वैसे बच्चों को उठा के बाहर फेंक दें, ऐसा मतलब कॉमेडी भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, पता नहीं, हम लोग से नहीं होगा। वी आर टीचर्स, नॉट सर्कस पीपल। ओके, एनीवे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट जो है वो डिपेंड करेगा कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट हो रहा है, स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है। और इट विल डिपेंड इनवर्सली ऑन, ये तो डायरेक्ट डिपेंडेंस हो गया, स्ट्रॉन्गर इज द इन्फ्लुएंस, मोर इज द चेंज इन फिजिकल स्टेट, मोर इज द चेंज इन फिजिकल स्टेट। जितना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट होगा उतना अधिक फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। जैसे पेन है, अगर कम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, ओके। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम is proportional to strength of external influence, and it depends inversely on the strength of tendency to oppose any change in the physical state। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट और इसको हम लोग बोलते हैं कॉज, और इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। देखिए कितना चेंज आएगा, एक इन्फ्लुएंस एग्जर्ट हो रहा है सिस्टम के ऊपर। अब सिस्टम में कितना, सिस्टम के फिजिकल स्टेट में कितना चेंज आएगा, पहला तो वो स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डिपेंड कर रहा है। उसके अलावे वो सिस्टम के अंदर इनर्शिया कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग मान लो पढ़ाते हैं
जैसे मान लो हम फैराडे लॉ पढ़ा रहे हैं, अब फैराडे लॉ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है क्लास में हर बच्चे को बराबर समझ में आता है। कई बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कई बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं। मतलब इवन इफ कि सबका लेवल सेम है तब भी, सबका एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेम है तब भी आप देखोगे कई बच्चे ज़्यादा समझते हैं, कई बच्चे सेम टीचर है। अब क्लासरूम टीचिंग में कोई टीचर कान में तो बोल नहीं रहा किसी के, वो तो अपनी जगह पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है। फिर भी आप देखोगे कई बच्चे जल्दी ग्रास्प कर जाते हैं, कई बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं, कई बच्चे बिल्कुल बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है। या इवन आप देखो कि वही टॉपिक हम लोग जैसे 10+2 के बच्चों को पढ़ाते हैं फैराडे लॉ, वही टॉपिक ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाएंगे, वही टॉपिक मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाओ, यही वही टॉपिक पीएचडी वालों को हम पढ़ाते ही नहीं, ठीक है। उनको पढ़ाना ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो बहुत जानते हैं, मुश्किल इसलिए है कि उनका इनर्शिया बहुत हाई होता है, ठीक है। तो मैंने पाया है कि 10+2 का बच्चा जल्दी ग्रास्प करता है, वो बड़ा रिसेप्टिव मोड में होता है, उसका इनर्शिया कम होता है, ठीक है। वो टेंडेंसी ऑफ अपोजिंग द चेंज वो कम है। इनर्शिया देखिए मनुष्य के अंदर उम्र के अनुसार बढ़ता है, उम्र के अनुसार बढ़ेगा। जो कम उम्र का बच्चा होता है रिसेप्टिव होता है, जानने को इच्छुक होता है, क्यूरियोसिटी हाई होता है उसका उन लोगों को फिजिक्स पढ़ाना आसान है। ग्रेजुएट बच्चों में थोड़ा सा इनर्शिया आ जाता है, वो थोड़ा सा उसमें इनर्शिया आ जाता है, उसको लगता है यार ठीक है यार हम तो जानते हैं बहुत कुछ, ऐसा वाला फीलिंग आ जाता है, तो रिसेप्टिव थोड़ा कम होता है। बट मेरा एक्सपीरियंस ग्रेजुएट बच्चों के साथ ही बहुत अच्छा रहा है, मतलब ठीक है पढ़ते हैं, मतलब उतना हाई नहीं रहता। बट मास्टर्स के बच्चों का इनर्शिया रियली हाई हो जाता है। मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाओ फिजिक्स, ठीक है यार पढ़ा लो यार, अब क्या करें मास्टर कर ही रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा वाला एटीट्यूड होगा। मतलब बहुत सब्जेक्ट में कमिटमेंट नहीं रहेगा, लेकिन चलो अब क्या करेगा बंदा, पढ़ ही गया तो पढ़ ही लेगा, ऐसा वाला एटीट्यूड में देखता हूँ। सब में नहीं, मतलब मोस्टली में, ठीक है। अब पीएचडी वाला को तो तुम पढ़ा ही नहीं सकते, उनके अंदर से बहुत आई है। या कोई प्रोफेसर है जो कि गलत पढ़ा, उसको कुछ बता दो कि तुम गलत पढ़ा रहे हो, वो तो बिल्कुल एकदम काटने को दौड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर से बहुत है, इन्फिनिटी इनर्शिया है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आप देखो कभी हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे, नाम नहीं लेंगे, पढ़ाते थे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ईयर में आईआईटी में, तो मैं देखता था कई चीज़ गलत ही पढ़ाते थे। हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे लेकिन फैक्ट बता रहे हैं। लेकिन हम लोग को हिम्मत नहीं होता था कि बोले सर ये थोड़ा एरर है आपका पढ़ाई, मतलब पढ़ाने में। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बोलने से कोई बेनिफिट नहीं है, वो समझने के लिए रेडी नहीं रहेगा, उसका इनर्शिया बहुत हाई है, इनफाइनाइट इनर्शिया लेके वो बंदा बैठा हुआ है, तो कुछ भी इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर लो चेंज जीरो होने वाला है। तो नो पॉइंट ऑफ टीचिंग दोज काइंड ऑफ पीपल, मतलब टीचिंग क्या मतलब उन पर कोई इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट है, अपार्ट फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टेंडेंसी टू अपोज एनी फिजिकल स्टेट। मतलब इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन इनर्शिया, कि सिस्टम के अंदर इनर्शिया कितना है, ठीक है। इवन एक क्लास में भी बच्चों में अलग अलग लेवल तक इनर्शिया होता है। कुछ बच्चे देखो एकदम ऐसे बैठेंगे बिल्कुल एंटीना आगे करके, तुरंत आप बोलो कैच कर लेंगे, ठीक है। कई बच्चे ऐसे पढ़ेंगे अड़क के, ठीक है। कई तो आगे चेयर खाली रहेगा तो पैर भी रख देंगे, तो बहुत हाई इनर्शिया लेके बैठा हुआ है, ठीक है। वो पढ़ने नहीं आया तो वो लोग नहीं समझेगा, उसका इनर्शिया बहुत हाई है, बेशक उनको बहुत अच्छा पढ़ा फिर भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो एक ही क्लास में भी अलग अलग बच्चे अलग अलग लेवल ऑफ इनर्शिया लेके बैठते हैं, और वो डिटरमाइन करता है कि कितना रेट ऑफ चेंज आएगा उनके अंदर, उनका नॉलेज कितना रेट से बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा उनके इनर्शिया। कोई टीचर तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटेंशन सेम है, टीचर सेम पढ़ा रहा है, पर फिर भी कुछ बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, कुछ कम सीखते हैं। फ़र्क है, फ़र्क इनर्शिया का है, फ़र्क इनर्शिया का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अभी दोनों लिख दोगे तो इक्वालिटी हो जाएगा, लेकिन राइट इफेक्ट इक्वल्स टू cause upon inertia, or we can write cause equals to
So we can write effect equals to cause upon inertia, or you can write cause equals to inertia into effect. If I put it to mechanics, I can write it as cause can be force. If it is translational dynamics, it will be force, and here it is translational inertia. So translational inertia is mass, and effect can be acceleration. If I put the same thing to say rotation, it will be torque, and rotational inertia will be I, and alpha would be angular acceleration, right? Angular acceleration. If I put it to electrodynamics, the cause can be potential difference, R can be the resistance, I is the current, effect current. इसी को अगर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू, और मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक सर्किट में जाएंगे तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू रिलक्टेंस, पढ़े नहीं होंगे हम, लिख दिए बेकार इसको, इनटू फ्लक्स। एनीवे भूल जाओ इसको, ये नहीं पढ़ना तुमको, ठीक है। और यू कैन अप्लाई टू heat flow also, like the heat flowing per second equals to temperature difference cause, and upon thermal resistance, x upon k thermal resistance. So delta T is heat flow into thermal resistance. तो कई जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ नॉट जस्ट सेज कि द फिजिकल स्टेट चेंजेस इफ इट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इट ऑल्सो टॉक्स ऑफ क्वांटिफिकेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. It says the rate of change of physical state is proportional to strength of external influence inversely depending on the inertia, and this is the generalistic expression of Newton's second law. Third law, very simple, you all know. तीसरा लॉ तो सब जानते हैं आप लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. अगर कोई दो बॉडी इंटरैक्ट कर रहा है आपस में, then interaction can be explained through action of force. Interaction को हम लोग action of force से explain कर सकते हैं. So if you have two objects A and you have B, or say object number 1 and object number 2. If you have two objects, object number 1, object number 2. So if object number 1 exert force on object number 2, and if I call it F21, then Newton's third law says if object 1 exert force on object number 2, then object number 2 will also exert force on object number 1. And the object number 2 जो object number 1 पे force exert करेगा वो equal and opposite to F21 होगा. So if I call it action, this is reaction. अगर 1 2 पे force लगा रहा है तो 2 भी 1 पे force लगाएगा, और वो जो force लगाएगा वो that will be equal to this and opposite to this. So force exerted by 1 on 2 is equal and opposite to force exerted by 2 on 1, right? So you have action reaction और action reaction. एक को action बोलेंगे, दूसरा reaction कहलाएगा, right? अगर आप को कोई एक तमाचा मारेगा तो आपको भी इच्छा होगा कि हम भी एक तमाचा बराबर मैग्नीट्यूड का मारें, ठीक है। बाकी आप मारते हैं या नहीं मारते हैं वो आपका पॉलिसी होगा, सिचुएशन में डिपेंड करेगा, लेकिन अंदर से इच्छा जरूर होगा। मतलब कोई मान लो बहुत आपसे बलिष्ठ आदमी है और वो आपको एक तमाचा मार देता है, आप नहीं मारोगे, लेकिन अंदर से इच्छा जरूर होगा। और वहीं तक फिजिक्स है, बाकी तो पॉलिसी है।
बाकी तो आपका पॉलिसी हो गया कि मारेगा तो 2 तमाचा हमको मार देगा, इसलिए नहीं मारते हो आप, ठीक है। लेकिन आपका अंदर से इच्छा जरूर रहेगा कि हम भी एक तमाचा मारें और बराबर मैग्नीट्यूड का मारें। अगर कोई कमज़ोर आदमी आपको मार देता है, ठीक है, एक तमाचा, तो आप देखते हैं कि कमज़ोर है, उसको 2 तमाचा मारते हैं, लेकिन इच्छा एक ही का था, इच्छा अंदर से एक ही का था। बाकी देखते ही कमज़ोर है तो 2-4 तमाचा मार दिया, तो अलग चीज़। फिजिक्स आपको वहीं तक होगा ना, जो इच्छा आया वही फिजिक्स है, वहीं तक फिजिक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको एक मारेगा तो आपको एक ही का इच्छा रहेगा। अब आप नहीं मारें या 2 मार दें, वो सब पॉलिटिक्स है, वो तो सिचुएशन बेस्ड है और पॉलिसी है, ठीक है, और डर है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इच्छा रहता है। गांधी जी को भी अंग्रेजों ने मारा होगा, तो गांधी जी के भी अंदर इच्छा जरूर रहा होगा रिटेलिएट करने का, हम मान ही नहीं सकते नहीं रहा होगा, क्योंकि फिजिक्स के लॉज का कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो गांधी जी का इच्छा जरूर रहा होगा कि हम भी उठ के 2 डंडा मारें, ठीक है, लेकिन वो नहीं मारे, वो उनका पॉलिसी था, नॉन वायलेंस का पॉलिसी था। वहाँ फिजिक्स नहीं लगता है, ठीक है, वहाँ फिजिक्स नहीं अप्लाई करता है। अप्लाई हम लोग इच्छा के जहाँ इच्छा होता है वहाँ तक फिजिक्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और चूंकि ये फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, दे नेवर कैंसल आउट। एक ऑब्जेक्ट में नहीं लगता है, दोनों एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सो नो कैंसलेशन। ओके, so we have discussed all the 3 laws over here. Okay, thank you very much.